coming in from Haryana. The Chandigarh police today registered a case against Haryana Minister Sandeep Singh after a junior athletic coach levelled allegations of sexual harassment and criminal intimidation against him. The minister has now given up his portfolio but has dismissed the allegations, has said that none of that is true. It's completely baseless and is an attempt to spoil his image. Listen in. आप सबको पता है कि एक माहौल क्रिएट किया गया है मेरी छवि को ख़राब करने के लिए, और एक खेल विभाग के जूनियर कोच ने जो एलिगेशंस, गलत फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी मैं चाहूँगा कि अच्छे से जांच हो, और जांच चल भी रही है। और जब भी उसकी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के बाद एक नैतिकता के कारण, एक इंसानियत के कारण मैं अपना खेल विभाग जो मंत्री जी अगला फैसला लें। And given that now the minister though has handed over his portfolio to the chief minister, Haryana Home Minister Anil Vij also met with the female coach, the victim in this case. The victim narrated her ordeal to the Home Minister and alleged that she was suffering for a long time given the harassment that she had to meet. The victim has also demanded strictest of punishment for the accused. इस पूरे साल फरवरी से अभी तक काफ़ी हैरेसमेंट का मामला था स्पोर्ट्स मिनिस्टर के अगेंस्ट संदीप सिंह के, तो काफ़ी बारी ने मना किया, प्यार से चीज़ें मना की, बट उनकी वो हरकतें लगातार चल रही थी, बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेंटली, फिजिकली हर तरीके से उन्होंने मुझे हराश किया है। तो एक एंड होता है हर चीज़ का, जो मेरा हो चुका था। मेरी खुद की भी राय है कि जब तक ये इस्तीफा नहीं देंगे किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट मैं खुद भी नहीं बनूंगी। जी बिल्कुल, इनको इस्तीफा और साथ ही जो इन्होंने मेरे साथ किया है उसकी कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ये इंसान सबको पता चलना चाहिए कि एक आप ओलंपिक लेवल पे खेल के और आप एक दूसरे नेशनल टीम के, इंडियन टीम के एथलीट के साथ आप ऐसे दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं। Now, despite the mounting pressure, remember the former sports minister, because he's handed over his portfolio, he's not been sacked as yet by the Haryana government, by the chief minister, which opens up another round of questions. Let's quickly go across to Professor Vidhu Rawal, Haryana BJP spokesperson, with us, along with political analyst Mr. Dushyant Nagar. Professor Rawal, first and foremost, the question comes to light: if the victim in this case goes on to say and rather file a complaint on the 29th, why the delay in the probe? Firstly. Secondly, she's also gone on to detail how she called the chief minister's PS and what she received in return was absolute silence. Everyone having turned a blind eye to her appeal. Why? Good evening, Katrine. Look, your accusations that nobody acted in the case is absolutely misplaced. One, that let's go to the events. What happened was that the alleged incident is several months old, and the complainant didn't report it in writing to any agency. She's saying that she called this person or that person. She did not report anything to anybody in writing, and all of a sudden she appears in a press conference and of course in an opposition party's office, where she alleges something, she makes accusations, and after that she goes on to complain in Chandigarh. And as soon as the complaint was made, the official ministry machinery came into the action and the formal FIR was launched. The complaint, Mr. Rawal, was filed on 29th, was lodged on 29th. She did a press conference the next day, but no action came in from the government's part against the minister. Now assuming high moral ground, he's gone on to conveniently hand over his portfolio to the chief minister. Is that enough? He still continues to be associated with the ruling party, right? No. All Sandeep Singh ji has said is that he wants a transparent and a fair probe. Look, he is in fact hinting at some kind of conspiracies. Giving his point of view, he says that accusations are false and baseless. There seems to be a foul play. That is what he says. There's an obvious attempt to spoil his image. But again, sports minister was not told to resign. He did it voluntarily. And even as I say, what are the accusations? But now that these are serious charges of sexual harassment that he continues to face, isn't it the responsibility of the state government to completely associate with him? Important part is, hello? Yes, sir. He currently faces charges of sexual harassment. Am I audible to you? I can hear you, but you're not giving me a pointed response, sir. Hello.
Can you fix the line and All right, I think he's not being able to hear me out. We'll fix that line with Professor Raval. दुष्यंत नागर जी, क्या कहेंगे आप क्या आपको लगता है कि एक फेयर प्रोब कैरी आउट हो जाएगा? क्योंकि अभी तक जो मंत्री हैं उन्होंने सिर्फ अपना पोर्टफोलियो चीफ मिनिस्टर को दिया है, अभी भी वो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए जी, ऐसे ही होता है। कुलदीप सेंगर जो आज एक सजा याफ्ता व्यक्ति है, उसके केस में क्या हुआ? उसको भी पहले भारतीय जनता पार्टी डिफेंड कर रही थी। चिन्मयानंद स्वामी जी को देख लीजिए, उनका केस विड्रॉ करने का प्रयास किया गया। आज जो पीड़िता है, पीड़िता कह रही है कि मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन किया, मैंने उसके उपरांत डीजीपी ऑफिस में फोन किया, उसके बाद उन्होंने अपने विभाग में प्रयास किया, लेकिन उनको कहीं से सहयोग नहीं मिला, कहीं से समर्थन नहीं मिला, कोई उनके साथ नहीं आया। तब उन्होंने पीसी की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पब्लिक डोमेन में सारी बातें कही है। एक तरफ तो आप बात कर रहे हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं को हमें आगे लेके आना है, और दूसरी तरफ एक महिला बेटी के साथ में जो अपना दर्द दुख दुनिया के सामने कह रही है, उसके कोई समर्थन में नहीं आ रहा है। विभाग छोड़ दिया है, मुख्यमंत्री को एहसान कर दिया। ऐसे व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। क्या हमारा कानून, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि महिला के ऊपर अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस आता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा। जो व्यक्ति अभी भी कैबिनेट में बना हुआ है, वो ताकतवर व्यक्ति है, वो जांच को प्रभावित करेगा। उसके बाद नागर साहब, आपने अरे भाई साहब, मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए आप। नहीं, आपने कुलदीप सेंगर के बचाव में भी आप आए। ये आपका रवैया है। आप महिलाओं की बात करते हैं, सशक्तिकरण की महिलाओं की बात करते हैं, प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि बेटी खैर, महिलाओं की सुरक्षा की बात तो कोई भी पार्टी नहीं कर सकती आज के दिन, क्योंकि अगर मैं राजस्थान के आंकड़े भी आपके सामने रख दूं तो काफी सवाल खड़े हो जाएंगे, और वो काफी अनकंफर्टेबल सवाल है। तो इसमें किस पार्टी ने क्या किया उसकी बात नहीं करेंगे हम, पर हाँ, सवाल यहाँ उठता है रावल साहब, सवाल ये उठता है कि अगर ये 9 महीने से, अगर ये फरवरी के मंथ से महीने से चल रहा था, ये चरित्र है, तो ये आपकी सरकार के नीचे चल रहा था साहब की पार्टी का, और अभी इतनी झिझक एक डिसीजन लेने के लिए संदीप सिंह के खिलाफ। कृष्ण, आप समझने का प्रयास कीजिए। अभी आप सिर्फ जो एक्विजिशंस बोली गई हैं उन पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं। हम यहां पर साइड्स नहीं ले रहे हैं। इवन बिफोर द इन्वेस्टिगेशन हैज बिगन, people are starting to give verdicts. नागर साहब सुनिए एक बात, नागर साहब सुनिए, ऐसे बात नहीं चलेगी। आप बुलडोज नहीं कर सकते डिबेट को। रुक जाइए एक बार। ये आप क्या बात कह रहे हैं? ऐसे बात चलेगी आप? अरे बुलडोज कैसे? बुलडोज क्या कर दिया? महिला के अधिकार की बात कर दी मैंने, तो आप बुलडोज करने लग रहा है आपको? नहीं रुकेंगे हम। ये आप देश को गलत नैरेटिव पेश मत करिए। रावल साहब, सवाल ये है ना, are you giving into Mr. Sandeep Singh today as opposed to what the victim is stating? She's gone on to narrate a audio, she's gone on to specifically talk about instances wherein she was forced to face that kind of harassment in the gym, several other locations. She's gone on to detail all of that. But would you want to give in to Sandeep Singh saying this is just being done to spoil his image? सर, उनकी इमेज स्पॉइल करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो फॉर्मर कैप्टन रह चुके हैं हॉकी टीम के, तो उनकी इमेज तो अच्छी थी ना। क्यों? सुनिए कृष्ण, आप साइड्स ले सकती हैं, लेकिन मैं साइड्स नहीं लेना चाहता हूं। मैं तो फैक्ट्स आपको बता सकता हूं, वो भी अगर मैं बस ये जानना चाह रही हूं कि ये कैसा प्रेसिडेंट सेट कर रहा है? व्हाट काइंड ऑफ एन एग्जांपल इज दिस सेटिंग टुडे? मैडम, अगर आप सुनेंगी और नागर साहब सुनने देंगे तो मैं फैक्ट्स बता सकता हूं। चलिए, अभी उन्होंने जो द लेडी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा, शी सेड कि मैंने मिनिस्टर से एक दिन पहले मिली हूं जाकर, और मैंने उनसे ये कहा, रिक्वेस्ट की, मैंने उनसे हेल्प लेने की कोशिश की कि सर मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। दैट इज हर वर्ड्स। शी वांट्स टू रिमेन एट द होम सेंटर। लुक, शी इज अंडर ट्रांसफर। शी सेज दैट शी इज एट हर पीक। अभी वो पीक पर हैं, एंड शी वुड बी डिस्टर्ब्ड if she goes to another center. She was angry because when she came to know that she was transferred to Jhajjar, she was angry because झज्जर का ग्राउंड जो है वो 200 मीटर का नहीं है। पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। उनका ग्रीवेंस इस बात को लेकर था कि वो 400 मीटर की रनर हैं, और तो आप कह रहे हैं कि कोई पर्सनल मोटिव है? आने वाले हैं। ये बस शिकायत
शिकायत है Between और पूरी बात इसीलिए सुननी उन्होंने पड़ेगी इतना आपको। बड़ा एलिगेशन डाल दिया संदीप सिंह पे, आप ये कह अगर रहे हैं? आपने मुझे बुलाया है तो मेरी बात पूरी सुननी पड़ेगी बात आपको। कर रहे हैं। अच्छा, कोई उनका इतनी ग्रीवेंस जो बड़ी था, स्पोर्ट्स उनका ग्रीवेंस इस बात को लेकर था कि वो अभी इंजरी से बाहर आई हैं और उनको झज्जर ट्रांसफर कर दिया गया है। जो सेवरल मंथ्स पहले जो कुछ हुआ उसको लेकर एक भी कहीं कंप्लेन की होती, जब पहली कंप्लेन उन्होंने चंडीगढ़ में की, पूरी सरकारी मशीनरी उस पर एक्शन में आ गई। तुरंत जो है वॉलंटरली आकर जो फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री गिव अवे कर दी। और इसके साथ साथ जो है वो कह रहे हैं, उनकी ग्रीवेंस तो समझिए आप, वो कह रहे हैं कि मेरी ट्रांसफर क्यों हो गई। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो ये बता रही है मेरी ट्रांसफर हो गई है। चलिए, आप कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस हैज बीन फॉलोड, आप कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये एलिगेशंस लेवल की, चंडीगढ़ पुलिस अब इन्वेस्टिगेशंस कर रही है, तो एवरीथिंग इज ऑन द राइट ट्रैक एंड justice will find its way to the victim if at all there is any merit to the charges that she's leveled against the former sports minister. Let's see how it plays out, because this is of course putting the Haryana government in a tough spot, and demand certainly on the rise as to why is it that he is not being sacked as yet, though he has said and conveniently passed off his portfolio to the chief minister. Everyone coming out to say in the opposition ranks that not much has been done on ground. I'm going to have to leave it at that. Thank you, gentlemen, for joining us this evening on the News Hour Special Edition. We head into a very quick break.